السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں حضرت اندور سے بول رہا ہوں. اچھا فرماؤ صاحب کیا حکم ہے؟ میں حکم کیا مطلب سے چھوٹا سا آدمی حضرت. میں تو آپ کی وہ تبصرے سنتا رہتا ہوں اچھا یوٹیوب پہ. ہاں ابھی بھی سن رہا تھا, سوال والا سن رہا تھا, اور ابھی وہ ایک سن رہا تھا. بڑا اچھا لگتا ہے حضرت, آپ کی بات سننے میں بڑا مزہ آتا ہے, اور آپ حق اور سچ بات بولتے ہیں. الحمدللہ. ہاں میں دیوبند بتاتا. میں آپ کا بڑا گردیدہ ہو گیا, اور بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. میں آپ کے وہ سنتا رہتا ہوں. ہاں میں نہ دیوبند بتاتا نہ بریلی نہ اہل حدیث, نہ سیدھے مسلمان بنا. بس اللہ نے کہا بریلی ہے نا. قرآن میں اللہ نے کہا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کے. ہاں ہاں جی, بہت اچھا, بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ کی بات سن کے. میں کئی بار سنتا رہتا ہوں آپ کی بات, ابھی بھی سن رہا تھا. پھر میں نے آپ کا نمبر آیا تو میں نے اس کو نوٹ کر لیا. اچھا کوئی پیغام نوٹ کرا دو, 10-15 منٹ کا تو ڈلوا دیں گے چینل پہ. اچھا اچھا جی. کیا حضرت نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام عبد الکریم ہے, اور میں یہاں علی مسجد بھی اور فاطمہ مسجد بھی اندور میں دونوں میں نماز پڑھتا ہوں. اچھا کون سی مسجد میں؟ علی مسجد. علی مسجد میں اور فاطمہ مسجد میں؟ جی جی, دونوں پاس پاس میں. ایک جماعت والوں کی ہے, ایک آپ بریلی والوں کی. دونوں میں پڑھتا ہوں نماز میں. دونوں میں پڑھو, دونوں مسلمان ہیں. ہاں, اور لیکن حضرت ایک بات یہ ہے کہ یہ جو بریلی والے ان کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے کرامات جو بتاتے ہیں, کہ سچ ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو من گھڑت ہیں. جی من حضرت گھڑت ہے. پیر نے فرمایا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن مت کرو. یہ نہیں بتاتے لوگ. جی ان کا یہ قول ہے. یہ نہیں بتاتے, یہ سوچتے ہیں کہ اس میں تو اپن پھنس جائیں گے, پھر عوام کو نمازی بنانا پڑے گا. اور معراج کا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والا واقعہ کہ وہ صاحب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے چوتھی منزل چوتھے آسمان پر, تو وہاں کا کندھا دے دیا حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. ارے یہ بھی موضوع روایت ہے بالکل. اب دیکھو یہ کہیں حدیث میں تھوڑی ہے صاحب, یہ کہیں حدیث میں تھوڑی حضرت ہے. اب اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں. یہ تو بالکل اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایسی وہ امین القادری ہے مالیگاؤں کا. ہاں وہ امین القادری کی بات بتا دو. ایک وہ الیاس قادری, وہ تو ساتھ میں کیا کہیں اس کو, مسلمان تو کیا کہیں, مسلمان تو کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو. بتاؤ اس سے دین کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ مسلمان کیسے کہیں صاحب. مسلمان تو یہ کہیں نہیں بریلی سکتے. والے یوں کہیں گے کہ والا کا پرچار کرتا ہے جو کٹر سنی مسلمان ان کا. جی 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 جی, وہ تو قوم کو گمراہ کر رہا ہے, مسلمان کیسے ہو جائے گا. قوم کو گمراہ کر رہا ہے. حضرت آپ جیسے انسان اگر ایسی شخصیت پیدا ہو جائے تو آج مسلمانوں کا بڑا بلند مرتبہ ہو جائے, اور بڑا اونچے پہ پہنچ جائے مسلمان, اور یہ نفرت ختم ہو جائے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دیوبندی بنو, کبھی کہا میں نے؟ نہیں آپ نے کبھی نہیں کہا. میں نے کہا بریلوی بنو. ارے سیدھے مسلمان بنو, قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے. جی جی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. جی 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 جی. وہ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کی اتباع نہ کرو. ہاں واقعی. ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا جی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ہائے واہ واہ, بہت اب قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تمہاری گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. شہر رکھ کے بھی قریب. تو جب اللہ اتنے قریب ہے تو اس سے تو مدد مانگ نہیں رہے. اوکیلا نہیں, ولیوں سے مانگ رہے ہیں, ولیوں سے مانگ سکتے ہیں. جی جی جی, وہی تو, یہی تو بات ہے. ارے ولیوں کے بارے میں تو قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے اس طرح سے مدد مانگنے کا. یہ تو توڑ مڑو کے بیان کر دیتے ہیں. اس طرح سے اتنا توڑ مڑوڑ کے بیان کیا جاتا ہے. اور آج تو یہ انٹرنیٹ ای میل کا زمانہ ہے, سب سن رہے ہیں, اور مطلب گمراہ والی بات ہے. اچھا مان بھی لیا, ان کی بات مان بھی لو کہ ٹھیک ہے ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں. اپن وہاں پر ان کی بات تسلیم کر لیں کہ ٹھیک ہے صاحب تمہاری بات مانی کہ ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں, کیا مان لیا ہم نے. اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, بتاؤ کہ اگر ہم نے غریب نواز سے مدد نہیں مانگی, غوث پاک سے نہیں مانگی, صابر کلیج رحمۃ اللہ سے نہیں مانگی, تو یہ بتاؤ کیا ہم مجرم ہو جائیں گے یا گناہگار ہو جائیں گے, یا قیامت میں اس کا سوال ہوگا
کہ तूने गरीब नवाज से मदद क्यों नहीं मांगी, कहीं लिखा हो तो ये बता दो। कहीं लिखा हो तो बता दो। सही बात है हजरत। चलो हमने तुम्हारी कहने से मान लिया कि मदद मांग सकते हैं, लेकिन हमें नहीं मांगना मदद वलियों से, हमें अल्लाह काफी है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं? ये कुरान में है, कुरान में साफ लिखा। तो फिर अल्लाह से मदद मांगने में क्या परेशानी है? इसमें देवबंदी को भी एतराज नहीं, इसमें अहले हदीस को भी नहीं, इसमें कादियानी को भी नहीं, इसमें ईसाई को भी एतराज नहीं, इसमें यहूदी को भी नहीं, इसमें दुनिया के किसी फिरके को एतराज नहीं कि अल्लाह से क्यों मांग रहा है। सही बात है साहब। और वलियों से मांगने में तो बहुत से एतराजात हैं, आपस में भी इख्तिलाफात हैं, बरेलियों में इख्तिलाफात हो जाएंगे। हाँ, बरेली में इख्तिलाफात है। नहीं, सब बरेलवी कायल नहीं आमतौर से। जी जी जी। वो तो जो फिरका रज़िया है जिनका ताल्लुक फाजिल बरेलवी से, वो ज्यादा इस पर जोर देते हैं। हाँ हाँ। पहले ये दावत इस्लामी वाले भी इस बात पर जोर नहीं देते थे, अब ये भी जोर देने लगे कि हमें कट्टर सुन्नी मान लिया जाए। हाँ, पहले दावत इलियास इस्लामी कादरी तो बड़े ही जज्बा और बड़े जोशो खरोश से बातें करे। नहीं, वो इसलिए हालत को मनवा रहा है कि उसको रकम चाहिए लंबी चौड़ी उनके नाम पर, करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया उसने। जी 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 जी। एक मुबल्लिग को 50,000 रुपये तनख्वाह देता है। अल्लाह, बताइए। पूरी दुनिया में कम से 10 लाख उसके मुबल्लिग हैं, 10 लाख फॉलोवर है उसके, जाने कितने फॉलोवर हैं। हाँ, 10 लाख समझ लो, 10 लाख तो तनख्वाह वाले समझ लो कम। अब 50,000 के साथ आप जोड़ लो तो एक महीने की तनख्वाह। हजरत 10 लाख मतलब उसके वो है मुबल्लिग कम बेच, मुबल्लिग है। हाँ, तो 50,000 के हिसाब से 50 अरब रुपया होता है एक महीने का। अल्लाह। अब ये बताओ, ये डिब्बों से चंदा करते हैं, अब आप अंदाज लगाओ क्या डिब्बों से इनकी तनख्वाह निकल जाएगी इतनी बड़ी? ना। ये तो डिब्बा एक बहाना है कि हमें और आपको दिखाने के लिए, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए डिब्बा एक बहाना है। जी जी जी। वरना डिब्बों से आप खुद जानते हो कितना चंदा होगा एक डिब्बे में, 500 रुपए, 200 रुपए, कितने ही डिब्बे लगते हैं। कुछ भी ना। हाँ, डब्बा रखे हैं दुकानों पे भी। यहाँ वो तो एक दिखाने को है ताकि लोग ये धोखा खाएं कि चंदा करते हैं। चंदे से कोई मतलब नहीं है, इनकी रकम इंग्लैंड अमेरिका से बहुत लंबी चौड़ी है। अच्छा खासा वो फंड आ रहा वहाँ से। नहीं, अब मैं आपको बताऊं, इंदौर की आप मस्जिद देखना, कोई जब मस्जिद तामीर होगी तो इतना बड़ा शहर इंदौर है, 1 से करोड़पति अरबपति है, लेकिन उस मस्जिद को बनने में 2 साल लग जाते हैं कि नहीं? कई साल लग जाता है। अभी हमारी मस्जिद में, इसमें फातिमा मस्जिद में तमाम हो रहा, वो काम ही तैयार नहीं हो रहा अभी। अब बताओ, कोटा की विज्ञान नगर की बन रही है, उसमें 1 से अरबपति लोग हैं, लेकिन 2 साल हो गए अभी तक कलर भी नहीं हो पाया। करीब 2 साल वहाँ हुआ कोटा में। जी जी जी। लेकिन इनके मदद से आनंद फानंद कैसे बन जाते हैं करोड़ों रुपये के, ये बताओ। ये तो बात है, वो पूरी दुनिया में बन जाए, एक जगह नहीं। यानी कितने मदरसे हैं कि पूरी दुनिया में। ओहो। तो ये कैसे? अब आपने बताया कि अभी हमारे यहाँ मस्जिद बनी है, इंदौर में नहीं बन पाई, 2 साल 3 साल हो गए ना। कई साल हो गए। हाँ, कई साल होगा। इनके बन के तैयार भी हो जाती है, कलर भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, और 50 अरब रुपया महीने की तनख्वाह अलग है। जी जी। बेचारा मस्जिद में हर जुमा में वो करते हैं, ऐलान करते हैं कि भाई आप मस्जिद के लिए कुछ मदद करो। अब जिसका जैसे भी साथ है इस तरह से दे देता, कोई 1000, कोई 500, कोई 100, 200। असली में ये काम इतने अच्छे कर देते हैं दावत इस्लामी वाले कि आदमी दीवाना हो जाता है। आम आदमी को यही चाहिए, हमारा बच्चा नमाज सीख ले, गुस्ल के तरीके सीख ले, वुजू के तरीके सीख ले, नमाजी बन जाए। आम आदमी का यही मिजाज होता है। जी जी। अब ये उसी की यानी पब्लिक की मेंटलिंग इतनी बेहतरीन करते हैं कि आम आदमी फिर हमारा दीवाना हो जाए और हमारी वजह से लड़ने मरने को तैयार हो जाए। हाँ हाँ हाँ। अब आप फिर लाख बुराइयां करो तो लोग कहेंगे अरे साहब मेरा लड़का नमाजी बन गया, उसने दुआएं सीख ली, उसने तकरीर करना सीख लिया, उसने नात पढ़ना सीख लिया। हाँ, नात पे ज्यादा जोर देते हैं। नमाज पे, इस पे भी ना जी। गुसल के फराइज मालूम हो उसको। अरे 10 सूरतें छोटी छोटी याद करा देंगे, वलम तरा से वन्नास तक मखरज के साथ में। तो यही बहुत है, अवाम के लिए यही बहुत है। जी जी। अब बाद में जब ये ईमान लूटते हैं तो फिर आप कितने बताओगे साहब, देखो ये अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवा रहे हैं। ये जब मैंने ये वाली आपके वो बयान सुनिया था, मैं मीठे मीठे रसूल। अरे साहब, इन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों से, जो इनके मुबल्लिग थे, उनसे अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवा दिया। बताइए कितने लोगों का ईमान बर्बाद किया साहब। क्या क्या कर रहे हैं इनको खुद। अब मैंने इसके जवाब में ये कहना शुरू किया कि इलियास की माँ, उसकी बहन और बेटी बहुत मीठी है। तो अभी एक साहब का पीलीभीत से फोन आया था अभी हाल कि तू उसकी माँ को, उसकी बहन को मीठा मीठा कह रहा है, शर्म नहीं आती, ऐसा कुछ कह रहा था। अरे मैं तू कैसे, मतलब मैंने कहा कि वो अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कह रहा है और तुझे बुरा नहीं लग रहा? जब बुरा नहीं लगा
اور میں نے اس کی اماں کو بہن کو میٹھا میٹھا شروع کیا ہے ریاض کی، اور اس کی مفتی سمر کتنا میٹھا ہے، کتنا میٹھا ہے، اس کی بہن کتنی میٹھی ہو، اماں کتنی میٹھی ہوگی، اور اس کی بیٹی کوئی بھی شادی کرنے کو تیار ہو جائے گا اس کی مفتی سمر کی بیٹی سے۔ مفتی سمر کہاں کے ہیں؟ یہ اس کا الیاس کا دلال ہے، وہیں کا ہے، اتاری کا، وہی پاکستان کے ہی؟ ہاں وہیں کا ہے، اتاری۔ اچھا اتاری، اتاری، ہاں وہ ہے، اس کی بہت میٹھا ہے، اور اس کی اماں تو بہت میٹھی ہے۔ جب وہ اتنا میٹھا ہے تو اماں کتنی میٹھی، اور حبیب تو اور بھی زیادہ میٹھا، اور عمران تو اور بھی زیادہ۔ یہ پینٹ بشرٹ پہنتا تھا عمران اتاری، پہلے ایسے رہتا تھا وہ لونڈے یار مجھے وہ بھی ہے فیس بک میں سب ہے اس کا۔ اچھا اب چولا بدل لیے تو خیر اچھی بات ہے، لیکن چولا بدل کے تم بدماشیاں کر رہا ہو۔ ہاں، ارے بھائی اب ہم نے چولا تمہیں بدل کے میٹھے بدماشی میٹھے کر، تمہاری اماں کو میٹھا کہا، اشرف آصف جلالی کی اماں کو ہم نے میٹھا کہا تو کیا برا کہا؟ وہ اس نے افروز سیدہ جلالی بھی فاطمہ بڑے، زہرا بہت امام بڑا حسین والا علیہ، بھیا وہ بھی۔ نہیں اس نے کون، اشرف آصف جلالی؟ جی اور یہ وہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو صاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ باب فدق کے مسئلے میں خطا پر تھی۔ بتائیے تو اللہ اگر توبہ میں نے اللہ۔ کہہ دیا کہ اشرف آصف جلالی کی اماں خطا پر تھی جب یہ پیدا ہوا تھا تو پھر سے برا نہیں لگے گا؟ صحیح بات ہے۔ یعنی ان کو یہ مسولی والے نے تعریف کی، مسولی کے جو پیر صاحب ہے نا، جی اس نے اس کی تعریف کی تھی اشرف آصف جلالی کی کہ اس نے صحیح بولا ہے۔ واہ، ہاں، یعنی وہ امام حسین السلام کی والدہ کو خطا کار بتا رہا ہو، تم پیر ہو کے اس کی تائید کر رہا ہو، کیسے پیر ہو؟ ہاں، ہاں، اور یہ بھی کہہ رہے تھے مسولی کے پیر صاحب کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، مجھے تو اعلیٰ حضرت پر ناز ہے، اور ان کے بیٹے پر، اور محدث کبیر پر، اور اظہری میاں پر ناز ہے۔ جی جی بتائیے۔ بتاؤ تم ان پہ تو ناز کر رہا ہو، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جن کے بارے میں کتنی حدیثوں میں ذکر آیا کتنے ان پر حدیث ہیں؟ 50 ہزاروں حدیث ہیں۔ حضرت ہزاروں۔ ابوبکر کے بارے میں ہزاروں حدیث ہے، حضرت عمر کے بارے میں ہزاروں حدیث ہے۔ ہاں اچھا، میں آپ کو اگر خواجہ غریب نواز کی مثال کے طور پہ ایک ٹوپی لا کے دے دوں، یا بغداد جا کے غوث پاک کی ٹوپی لا کے دے دوں، ہاں تو آپ کی ساری زندگی ناز کرو گے، کرو گے کہ نہیں صاحب؟ جی جی جی، اب جس کے پاس حضرت علی کا جبہ ہو یہ کہے کہ مجھے اس پر نازی نہیں ہے، تو کیا معلوم جبہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے، صحیح نہیں وہ بات تو ہے۔ کہا تھا نا وجی الدین صاحب جو ان کے خاندان کے، انہوں نے کہہ دیا اگر تمہارے پاس جبہ ہے تو دیوا شریف آؤ، اس کی سند لے کے آؤ، اور ہم علم کی سند لے کے آئیں گے۔ تو نہیں آیا تھا جبہ شریف کی سند لے کے، نہیں آیا دیوا شریف، وہ ان کے خاندان کے ایک وجی الدین صاحب سید، جی تو کہا کہ اگر تمہارے پاس جبے کی سند ہے تو لے کے آؤ۔ ان کو یہ بات بری لگی تھی، وہ ایک مرتبہ اچھا، انہوں نے مجاہد کہا اس بات کو کہا، ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس جبہ ہے تو لے کے آؤ؟ ہاں سنا ہے نا آپ نے؟ ہاں نہیں سنا نہیں میں نے، آپ سے نہیں کہا سن انہوں نے، وہ انہوں نے جب یہ بات سنی نا کہ حضرت علی کے جبے پر انہوں نے ناز ظاہر نہیں کیا اور اعلیٰ حضرت پر ناز ظاہر کیا، جی تب جی انہیں جی، غصہ اچھا، آیا تو کہا کہ اگر تمہارے پاس جبہ ہے جس پر تمہیں ناز نہیں ہے تو جبے مبارک کی سند لے کے دیوا شریف آؤ۔ او ہو وہ تاریخ بھی بتائی تھی، اس تاریخ کو آؤ، اور ہم اسی تاریخ کو جس پر تم نے اعتراض کیا کہ ہمارے پاس علم کی سند نہیں ہے، بلگرام میں علم ہے نا کوئی، جی، حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کا، کہا کہ ہم اس کی سند لے کے آئیں گے، تم جبے کی سند لے کے آؤ۔ او ہو، تو نہیں پہنچے یہ جبے کی سند لے کے، جی جی۔ تو ہو گئی نہیں سند جبہ کے معلوم ہے بھی کہ ہے ہی نہیں صاحب، میں تو یہ کہوں گا ہو گئی نہیں۔ حضرت اب یہ جو جھانسی میں مناظرہ ہوا ہے کس کس کا ہوا؟ یہ تھے سنی وہابی کا معاملہ تھا۔ اچھا اچھا، ہاں وہابی تو تو اس ہے میں کہ امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے، اور جو ادھر سے مارر شریف سے آئے تھے تاجدار اہل سنت ثانی مفتی اعظم ہند سید سبط نظر میاں صاحب، وہ امام حسین کو علیہ السلام کہنے والے گروہ میں ہیں۔ اچھا، اور وہ جو آئے تھے پیلی پگڑی باندھ کے جمد شاہی کے، وہ وہابی، وہ ہے اسی طرح کی پارٹی ہے ایک طرح کی، یعنی سلام بھی پڑھ لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں، وہ ڈپلیکیٹ قسم اچھا کے ہیں۔ اچھا وہ امام حسین کو کبھی علیہ السلام نہیں کہتے، منع کرتے ہیں۔ اچھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو وہ نہیں مانتے ہیں، علیہ السلام نہیں مانتے ہیں؟ علیہ السلام نہیں کہتے، کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہو، علیہ السلام مت کہو۔ جی جی جی، ہے تو وہ سنی کہلاتے ہیں، لیکن میں نہیں مانتا، کائے کے سنی ہو تم جب امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے تو؟ ہاں ہاں، ارے سیدہ مطلب فاطمہ آپس میں سنیوں کا ہی وہ تھا مناظرہ۔ اچھا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا امام حسین کو علیہ السلام، امام بخاری نے جہاں جہاں امام حسین کا ذکر آتا ہے نا تو وہ علیہ السلام لکھتے ہیں ہر جگہ، سیدہ فاطمہ زہرا کا نام آتا ہے تو علیہ السلام لکھتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی کہے صاحب شیعوں کی اس میں تحریف ہے یا شیعوں کا تصرف ہے تو شیعہ تو حضرت ابوبکر صدیق اور رضی اللہ عنہ بھی نہیں لکھتا، وہ تو لکھتے ہی نہیں، تو ان کو دشمن مانتے ہیں۔ دشمن مانتے تو تم اگر یہ کہتے ہو شیعہ نے اس میں وہ کیا ہے، تحریف کیا ہے، اس کا تصرف ہے بخاری شریف میں، تو شیعہ تو صحابہ کو رضی اللہ عنہ بھی لکھتا تو پھر اس میں تو رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہوا، اگر شیعہ کی مانتے ہو تو ہاں ہاں، تو پھر بھی تمہاری بات درست نہیں ہوگی، کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح بات، بالکل صحیح، تو جائز امام بات۔ بخاری نے جہاں جہاں ذکر آتا ہے نا سیدہ فاطمہ زہرا کا
صاف لفظوں میں علیہ السلام لکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام لکھتے ہیں، لکھا انہوں نے بخاری شریف میں کم سے کم 15-20 حدیثوں میں، بخاری شریف میں آپ کو سب سینڈ کر دوں گا جتنی حدیثوں میں لکھا ہے نا. جی 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 4 حدیثوں کے تو میں نے حوالے بھیجے تھے، ابھی میں نے یوٹیوب میں ڈالے ہیں، انشاءاللہ اور دیکھ دیکھ کے میں حوالے ڈال دوں گا. ہاں ڈالنا تھا. اور غوث پاک نے غنیت الطالبین میں جہاں جہاں امام حسین کا نام آتا ہے وہ بھی علیہ السلام لکھتے ہیں، بڑے پیرانے پیر. تو یہ پیرانے پیر کو بھی کم مان رہے ہیں صاحب؟ ہاں نہیں مان رہے نا، یہ تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں ہم ان کے سلسلے میں، لیکن جو انہوں نے امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے تو کہتے ہیں وہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے. غنیت الطالبین کو کہتے ہیں ان کی کتاب نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ تیرے باپ نے لکھی تھی بغداد میں جا کے. مطلب یہ ہے کہ جو تیرے مطلب کی نہیں ہے تو وہ ان کی کتاب نہیں ہے، جو تیرے مطلب کی ہے تو وہ اہل حدیث کی طرح معاملہ ہو گیا. جیسے اہل حدیث وہی حدیث سے مانتے ہیں جو ان کے مطلب کے مطابق. ہاں جو مطلب ایک دم رجسٹرڈ حدیث اس کو ہی مانتے ہیں وہ. ہاں اور جو ان کے مطلب کے مطابق نہیں ہے اہل حدیث کے، بولو اس کو موضوع وہ ملتے ہیں، کیا بولنا چاہیے، موضوع ضعیف. ہاں ضعیف موضوع بول دیں گے، ضعیف بول دیں گے، ایسے ان لوگوں کا حل ہو موضوع گیا. نہیں. ہاں نہیں یہی بریلیوں کا حل ہو گیا ہے. یہ بریلی کہ غوث پاک کی کتاب دنیا میں مشہور ہے. آپ کے جو اندور کے انوار البیان ہے نا، جی جنہوں نے انوار البیان لکھا وہ خود یہی لکھتے ہیں کہ یہ غوث پاک کی کتاب ہے، غنیت الطالبین مشہور. اچھا وہ بھی انوار البیان میں یہی لکھتے ہیں. ہاں اور انوار البیان کی ایک بات خاص بتاؤں میں آپ کو، جی جب بھی وہ اس میں انوار البیان میں صحابہ کرام کا نام لکھتے ہیں تو حضرت کہہ کے لکھتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر. اور جیسے ہی بریلی والوں کا نام شروع کرتے ہیں تو پھر حضور لکھنا شروع کر دیتے ہیں. جی حضور لکھنا شروع تو اب یہ مجھ سے کیا کہتے ہیں کہ حضرت حضور میں کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تمہاری اپنی جگہ ہے، تمہاری من گھڑت باتیں منطق، مگر یہ بتاؤ کہ جب صحابہ کرام کا نام لکھ رہے ہو تو تم حضرت لکھ رہے ہو، اور جب تم ازہری میں آ کر مفتی اعظم ہند کا نام لکھتے ہو تو حضور لکھتے ہو. یہ کیا مطلب ہے؟ احمد رضا صاحب کا نام لکھ رہے ہیں، مولانا اعلیٰ حضرت کا، ہاں تو پھر حضور لکھ رہا ہو. تو حضور لکھ رہے. جب تم کہتے اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو تم صحابہ کرام کو حضرت کیوں نہیں لکھا؟ پوری انوار البیان میں ایک بھی صحابی کو حضور نہیں لکھا، ایک بھی صحابی. جی اگر اپن ان کی بات مان لیں چلو کوئی فرق نہیں ہے تو تم نے صحابہ کو حضور کیوں نہیں لکھا، اور تم نے یہ 14ویں صدی کے مولویوں کو حضور کیوں لکھا ہے؟ ہاں صحیح بات. یعنی جو لقب اللہ کے رسول کے لیے بولا جاتا ہے وہ بھی انہوں نے عام لوگوں کو دینا شروع کر دیا ہے. جی جی. اور دنیا کا ایک بھی عالم ابھی اس بارے میں کوئی زور شور سے منع نہیں کر رہا کہ بھائی دیکھو لفظ حضور اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے، آپ لوگ اس کو قطعی نہ بولے. حضرت جب صحابہ کرام کو ہم بولتے ہیں تو ہم لوگوں کو حضرت بول دو تو یہی بہت ہے صاحب، ہم تو حضرت کے لائق بھی نہیں ہے. ہاں اور کیا حضرت نہیں یہ کہہ سکتے نا مولوی ملا، لیکن ایک بھی پیر، ایک بھی مولوی، دنیا کا کوئی بھی آدمی نہیں کہہ رہا کہ حضور کہنا بند کرو، یہ صرف اللہ کے رسول کے لیے بولا جائے گا. جی اور کیا. اکیلے میں نے آواز اٹھائی. حضرت جیسے اعلیٰ حضرت کے لیے رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں تو یہ بھی کیا صحیح ہے؟ نہیں بالکل جائز نہیں ہے، قطعی ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ صحابہ کرام کی پہچان ہے. یہ صحابہ کرام کے لیے آیا تھا. ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جیسے کہ حضرت مولانا مفتی نور الحق صاحب رحمت اللہ علیہ جی، اور حضرت مولانا عشرت علی صاحب رحمت اللہ علیہ جی جو قاضی اندور ہیں، حضرت مولانا عشرت علی جی، عشرت علی صاحب رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ ہر شخصیت ہے، وہ ہر شخصیت ہے. اب آپ جیسے میں رحمت اللہ علیہ کہتا تو آپ چونکتے کہ ارے وہ تو ابھی زندہ ہے. میں کہتا ٹھیک ہے ہم بھی مانتے زندہ ہے. تو میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جیسے تم چونکے رحمت اللہ علیہ کہنے سے کہ قاضی عشرت علی صاحب تو ابھی زندہ ہیں اندور والے، آپ نے رحمت اللہ علیہ کیوں کہا؟ میں کہوں گا کیا میں نے ان کو گالی دیا ہے؟ نہیں وہ رحمت اللہ کی رحمت ان کے اوپر. ہاں دنیا سے جانے والوں کی پہچان ہے. میں تو ٹھیک ہے میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ صحابہ کی پہچان ہے رضی اللہ عنہ. تم جب غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ بولتے ہو تو عوام کا کیا ہوگا؟ جیسے میں غیر صحابہ، جیسے میں ابھی زندوں کو رحمت اللہ علیہ بولوں تو عوام یہی تو کہے گی نا یار صاحب وہ تو زندہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں یار، ابھی تو زندہ ہے، حیات ہے. ہاں یہی کہتا ہے نا عام آدمی ہے. جی عام آدمی یہی کہتا. تو یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب تم غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہو گے تو پبلک کا ایسی مزاج ہو جاتا ہے کہ یار یہ صحابہ کا نام بولنا ہے کہ غیر صحابہ کا بولنا ہے، عوام سمجھ ہی نہیں پاتی. جی جی. اچھا یہ اعلیٰ حضرت کا لفظ کسی کو نہیں بولتے ہیں، ہاں صرف مولانا احمد رضا صاحب کو بولتے ہیں. وہ سرٹیفکیٹ ہے کہ ان کے علاوہ آپ کسی کو نہیں بول سکتے. کون سے بڑا اعلیٰ حضرت ہے ہی نہیں کوئی ہے نہیں دنیا میں، ان کے علاوہ کوئی کو آلات نہیں کہو گے آپ. اور ایک بار ایک مفتی محمود تھے کانپور کے، ان کے والد تھے مفتی رفاقت حسین کانپوری. میرے پاس ان کی کتاب ہے اہل سنت میں اختلاف و تفریق کے المناک واقعات، صفحہ 116 پہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایک بار اپنے والد کے مریدوں میں کہہ دیا اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ.
अच्छा। तो एक आदमी उठा बरकाती सिलसिले का था कि ये आला हजरत दूसरे कहाँ से आ गए। कहा कि साहब कह सकते हैं, खुद फाजिल बरेलवी ने अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह को आला हजरत कहा है। उसमें जी दलीलें भी नहीं कि उन्होंने अपने पीर को आले रसूल मारहलवी रहमतुल्लाह अलैह को आला हजरत लिखा है फाजिल बरेलवी ने। जी कहा कि जी नहीं जी, नहीं, आला हजरत तो सिर्फ बरेली वाले, दूसरा नहीं कोई। कोई है ही नहीं, उनके अलावा आला हजरत कोई है ही और नहीं। हुजूर कह रहा है, किसी को भी उस पर कोई इतराज नहीं है। हाँ। एक बंदा भी खड़ा होके नहीं कह रहा मजमे आमने के साथ देखो आला हजरत कहने से तो इतना बड़ा इतराज हुआ है। ये जालौन की बात है, कानपुर की बात जालौन की। जी जालौन देखा सफा मैंने। 116 मेरे पास किताब है, उसका नाम है अहले सुन्नत में इख्तिलाफ व तफरीक के अलमनाक वाक़या। तो अच्छा बाकायदा उसकी मुखालिफत में जलसा हुआ मुफ्ती महमूद की कि इसने आला अच्छा। हजरत क्यों कहा अली हुसैन अशरफी में। ओहो बताइए। जलसा हुआ है, मेरे पास किताब रखी है। मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी आए थे और खतीब अच्छा। मशरक निजामी साहब आए थे। इन दोनों ने आके रद्द किया उसका कि तूने आला हजरत बरेली वालों के अलावा किसी वालों को क्यों किया। ओहो। लेकिन आज तक कभी हुजूर कहने पे जलसा नहीं हुआ कि साहब लफ्ज हुजूर आम न किए जाए, अल्लाह के रसूल के साथ ही खास है बस। हाँ। जब हम तमाम साहबा को, आदम अलैहिस्सलाम को हजरत कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक हाँ को हजरत कहते हैं, तो हम क्यों अपने आज के मुल्लाओं को 14वीं सदी के लोगों को हुजूर कहें। यही ये वाली बात, कितनी पॉइंट वाली बात करी आपने। अब ये कहते हैं इसमें फर्क क्या। अरे यार फर्क है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन अल्लाह के रसूल के साथ खास है वो लफ्ज हुजूर है। हाँ हाँ। फिर तो तुम जो चाहो करने लगो, कह दो कि साहब इसमें फर्क क्या है इसमें फिर तो जो चाहो मतलब निकाल लो। फिर तो ताजदार भी कह दो कि ताजदार हुजूर ताजु शरिया, सरकार हुजूर ताजु शरिया, फिर तो जो चाहो कहने लगो। तमाम लकब लगा बना लो, हाँ। अपनी तरफ से कुछ भी कह दो। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि सैयद नूरुल हक साहब जी। जो मुफ्ती मालवा है इंदौर के रहमतुल्लाह अलैह, हाँ और इसी तरह से और मैं ऐसे लोगों को सैयद बोलूं जो सैयद ना हो तो आप क्या कहोगे, साहब वो सैयद नहीं है, वो तो फलानी जात के हैं, यही कहोगे ना आप। हाँ। तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है वो जात के हैं, लेकिन मैं सैयद इस मायने में कह रहा हूँ कि सैयद के माने सरदार के होते हैं। अच्छा, तो मैं सैयद के इस मायने मायने में सरदार कहूँगा, मैं कहूँगा साहब इस मायने में कह रहा हूँ, मैं औलाद रसूल के मायने में नहीं कह रहा। तो हाँ आदमी तो चौंक जाएगा साहब, आम आदमी तो यही समझता है सैयद कहने से कि ये अल्लाह के रसूल की औलाद में है। हाँ। अब मेरे दिल में कुछ भी मतलब हो, लेकिन अवाम तो गुमराह होगी ना साहब। जी जी जी। अब इसी तरह लिए हुजूर का लफ्ज इन लोगों ने इतना आम कर दिया कि अब तो ये बरेली के एक एक बच्चे को हुजूर बोलना है। हाँ बरेली के बच्चे को हुजूर, 15-15 साल के लोंडे को, 20 साल के लोंडे को, 22 साल के लोंडे को हुजूर कह रहा हो, वो मना भी नहीं कर रहा कोई। ना 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 ना। आज तक किसी भी पीर ने अभी जो मौजूद हैं हिंदुस्तान में, मैंने एक के मुंह से भी नहीं सुना तकरीर में कहा हो कि साहब देखो हमारे साथ तो हमें तो हजरत के लायक भी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कहना ये तो हजरत कह दो यही काफी है। यही साहबा किराम को कहा जाता है, यही तमाम नबियों को कहा जाता है। हाँ ये तमाम नबियों को कहा जाता है कि वो अगर सारे तुम कहते सहाबा हो को। हजरत हुजूर में कोई फर्क नहीं है, तो कोई जलाल में आकर कहते मारेरा बिलग्राम का पीर और मसूरी का पीर, जो कालपी का पीर तो कभी जिंदगी में नहीं कहेगा, लेकिन ईमान वाला कह देगा ठीक है। जब हजरत हुजूर में फर्क नहीं है तो आज से आला हजरत में भी किसी को कहने में कोई फर्क नहीं है, सबको आला हजरत कहा जाएगा जितने भी मौलवी इमाम है। हाँ सही बात है। तो फिर तो ये भड़क उठेंगे, नहीं नहीं आला हजरत नहीं कहने देंगे। क्यों? हाँ वो तो स्पेशल उनके लिए लकब यानी आया है। आला हजरत की तुम्हें इतनी फिक्र है और अल्लाह के रसूल की फिक्र नहीं है। ना ना ना, अल्लाह के रसूल की फिक्र नहीं है। यानी और आला हजरत हजरत एक कहने बात पर ये जलसा भी हुआ है जालौन में, कानपुर के पास में। जी जी जी। इनका ईमान है साहब, बताइए। कहते हैं मक्का शरीफ मदीना शरीफ के इमाम मुसलमान नहीं है। हाँ बताइए, उनके पीछे नमाज नहीं होती। मैं अभी इनके कहता हूं फतवे कि आ रहे हैं अगर कि ये वो कहेंगे कि मक्का अभी शरीफ फतवे मदीना, आ रहे हैं कि वहाँ हज के लिए मत जाइए, वहाँ हज नहीं होगा तुम्हारा। हाँ ये सुना है कहीं आपने? हैं? ये सुना था आपने हज मत करो हाँ इनको? जी जी सुना था ना मैंने। अरे क्या क्या इन लोगों ने फतवे दे रखे हैं बताइए आप। हाँ कि भैया कोई बरेली वाला वहाँ नहीं जावे, उनका हज ही नहीं होने का, उम्रा ही नहीं होने का। बताइए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कौम को ये कहाँ लेके जा रहा है? कहा, यही तो अफसोस इस बात का ही तो होना हजरत, आप जैसी शख्सियत अगर हिंदुस्तान में पैदा हो जाए तो सारा बिगाड़ खत्म हो जाए। कम बड़ा से अच्छा कम लगता है। ऐसे 1000 लोग पैदा हों जो हक बताएं, मेरे अकेले से हाय कुछ नहीं हाय, होगा। हाँ अकेले से मुझे कुछ बड़ा नहीं अच्छा होगा। लगता था तो आपकी बात सुनकर, और मैं काफी दिन से आपकी बात सुना था, आज ये तो नंबर सुनो, मिला। एक हिंदुस्तान में एक इमाम है, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो है सोने से तोलने के लायक इमाम अभी कौन? हिंदुस्तान में मौजूद है, जिसकी उम्र 45 साल है, जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में छा गया है, इस्लाम का डंका बजाता है, किसी फिरके का डंका नहीं बजाता हूँ। जी जी कौन सा इमाम है? आप भी समझदार हो, समझ जाओगे। आप बताइए। अरे वो शेरे पंजाब है।
अच्छा वो शेर जी हाँ हजरत वहाँ उनकी बात भी बहुत ही बेहतरीन है। वो सोने से तोलने के लायक इमाम है, जैसे इमाम अगर हो जाए 1000 तो मदद। हाँ हाजी क्या कहने साहब उनकी बात है, शेर पंजाब इमाम है पंजाब वाले। अभी भोपाल में आए थे, तारीखी मजमा हुआ है सेंट्रल लाइब्रेरी में। अच्छा तारीखी मजमा साहब 2 घंटे हजरत वो बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हैं। अरे पब्लिक उठी नहीं है साहब, जिस बार वो तकरीर बयान की थी उन्होंने, तो मजमा समझ लो कि बेकाबू मजमा था। मैंने नेट में देखा था लाइव में। जी जी जी। लेकिन ऐसा मजमा शायद और किसी की तकरीर में नहीं हुआ होगा अभी तक, और भी हुआ होगा लेकिन बहुत सारे आलिम आए में जब जमा हुआ इतना मजमा। अच्छा हजरत एक ये जो इनके बारे में क्या आपका असगर अली इंजीनियर जो है, असगर अली इंजीनियर वो पाकिस्तान के है ना, असगर अली इंजीनियर का यूट्यूब पे आता बहुत। मिर्जा अली इंजीनियर में हाँ मिर्जा वो तो आदमी बहुत अच्छा था, लेकिन वो बहक गया जवानी में। हाँ अगर वो कंट्रोल में रहता ना तो हीरा बन जाता, लेकिन वो शैतान हो गया। तो उसकी बात तो थोड़ी सी मतलब जो बात करता हो वो तो हवाले से करता, सब करता, लेकिन बड़े हवाले देता हजरत वो तो। लेकिन वो तो सही है, लेकिन उसने बड़े बड़े वलियों पे छीटा कसी कर दी है। हाँ वो बड़े बड़े दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह पर, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी पर, और भी बड़े बड़े और भी उलमाओं पर आपने क्या नाम अशरफ अली थानवी का रहमतुल्लाह पर। जी जी जी। काश के अगर वो वलियों के बारे में गुस्ताखी नहीं करता तो फिर वो और ज्यादा छा जाता। हाँ उसके फॉलोअर बहुत है हजरत। नहीं, उसने क्या है कि छीटा कसी बहुत करी है। हाँ थोड़ी छीटा कसी कर दी, और मतलब ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में तो ये हदीस कहते ही है कि साहब उन्होंने अपना कलमा पढ़वाया ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। हाँ ऐसे ही अशरफ अली थानवी के लिए बोलता नहीं, वो तो क्या है कि अशरफ अली थानवी साहब का तो ख्वाब का मामला है, इनका बेदारी का है। अच्छा तो अब इसमें वकालत दोनों ने की है, थानवी साहब ने भी की है और फाजिल बरेलवी ने भी की है। अच्छा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ से। हाँ कहा कि वो मुरीद की नियत जानना चाह रहे थे, इसलिए कहलवाया था ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। बाद में कहा भी कि कलमा वही है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तुझे आजमाना चाह रहा था जी। और ये वाकया सब सनाबिल में भी है, और थानवी साहब भी ने भी इस बात को लिखा है, माना है, और फाजिल बरेलवी नहीं माना। मगर मैं इन दोनों का रद्द कर देता हूँ, चाहे वो थानवी साहब ने हिमायत की हो या फाजिल बरेलवी, मगर मैं दोनों का रद्द तो नहीं, मगर दोनों से हटके मैं कहता हूँ जी कि मैं कहता हूँ कि ऐसा अव्वलन साबित नहीं हो सकता है कि साबित ही नहीं हो सकता रसूलुल्लाह पढ़वाए, इसलिए कि वो दौर इस्लाम फैलाने का है, आप इस्लाम फैलाने आए, और अगर ऐसी बातें करेंगे तो अवाम गुमराह हो सकती है। सही बात है हजरत, सही। और जो हजरत का मुरीद होने आया है, जब मुसलमान है तो उस वक्त वो मुरीद ही है, उसको आजमाने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो आजमाने का टाइम भी नहीं है उस वक्त। जी 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 क्योंकि आप तो इस्लाम फैलाने आएंगे तो अब आजमाते तो वहां पर जहाँ पहले से ही मुसलमान हो। हाँ अरे जब शुरू से ही मुसलमान हो वहाँ तो आजमाने की बात चल सकती है। जी जी। इंडिया में आजमाने की बात क्यों चलेगी साहब? आप इंडिया में इस्लाम फैलाने आए और आपका जो मुरीद बनने आया वो आप उससे कहलवा ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह का हो, जब वो मुसलमान ही है तो समझ लो आपका मुरीद ही हो गया। और दूसरी बात यह है कि मैंने कहा हुजूर का फरमान है इत्तकू फिरासतुल मोमिन, मोमिन की फिरासत से डरो, फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो जब आम मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है तो वो तो औलिया के सरदार थे। जी जी जी। जिसके बाद अल्लाह का नूर हो, हुजूर ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। जी जी जी। और इसी नूर की तशरीह में हजरत अल्लामा मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है शरफ़ अकबर में कि फिरासत क्या है, उसकी तारीफ बयान की है उन्होंने, तशरीह कि अल फिरासत मुकाशिफतुन नफ्स व मुआयनतुल गैब व हिय मक़ामुम मिन मक़ामातिल ईमान, कि फिरासत ये है कि नुफूस का मुकाशफा हो जाना, दिलों के हालात का जान लेना, वो मुआयनतुल गैब, गैब की बातों का मुनकशिफ हो जाना, यानी गैब की बातों का मुआयना कर लेना। फरमाते हैं ये ईमान के मकामों में से एक मकाम है। तो ये इसमें तो नुफूस का मुकाशफा भी आ गया और मुआयना गैब भी आ गया, और वो तो गरीब नवाज है, गरीब नवाज है, उन्हें आजमाने की क्या जरूरत है कि इस तरह से आजमाया कैसे पढ़ो। नहीं, ये बात तो वहां मानी जाए कि जहाँ पर पहले से ही मुसलमान हो और आप इस तरह से कहलवाते तो वो एक बात अलग थी। क्या ख्याल है साहब? नहीं सही बात है, हक बात है आपकी। हाँ, और दूसरी बात है कि आपने अपने इंदौर के भी पहले के बुजुर्गों का सुना होगा, ये देवबंद वालों में भी ऐसे हुए हैं, बरेली वालों में भी ऐसे, दोनों में हुए ऐसे बुजुर्ग हैं जो दिलों के हालात जान लेते थे। आपने भी वाकया सुने होंगे ऐसे? जी सुने। ये दोनों तरफ से देवबंद बरेली के दोनों आलिमों के ऐसे वाकयात मिलते हैं। तो जब ये अभी के लोग मिर्जा इस बात को नहीं मानते ना। वो तो शैतान किस्म का हो चुका है वो।
ہاں تو وہ اس نے حضرت خواجہ غریب نواز کے اوپر جب بہت زیادہ چھیٹا کسی کی نا، جب سے مجھے نفرت ہو گئی اس سے بہت، یہی اچھا بات کو لے کر کے۔ ہاں ہاں اچھا، دوسرے حدیث بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے جب آ کر سوال کیا اللہ کے رسول سے، ہاں حدیث بخاری شریف میں تھوڑا پڑھ دیتا ہوں۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم قال ايكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الذي يربو المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال إني سعيدك لمشدد عليك في المسألة فلا تزد علي في نفسك فقال سلم ما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلاة الخمسة في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا زمام ابن سلامة أخو بني سعد بن بكر رواه مسلم علي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بهذا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جی جی میں نے اس لیے یہ پڑھا، بخاری شریف کی حدیث بتائی آپ نے، میں نے پڑھ کے بتائی بخاری شریف کی، میں وہ رسول کا مطلب بتا رہا ہوں کہ اگر مان لو تسلیم کر لو، ویسے تو ہم نہیں کہہ سکتے حضرت نے ایسا کہلوایا ہو خواجہ صاحب نے، لیکن ہم تو یہ اہل حدیث کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہلوایا ہی ہے تو پڑھو یہ بخاری شریف کی حدیث جو میں نے ابھی پڑھی کہ اس شخص نے جب مسجد کے کنارے اونٹ باندھ کر سوال کیا اللہ کے رسول سے، 4 سوال کہ یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کروں گا، سختی سے کروں گا مگر آپ ناراض مت ہونا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو تیرے دل میں آپ پوچھ لیں۔ تو پہلا سوال یہی کیا یا رسول اللہ کہ اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رہبر، پورے انسانوں کے لیے رہبر بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں۔ دوسرا سوال تھا یا رسول اللہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے آپ دن رات میں 5 ٹائم کی نماز پڑھوائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں۔ تیسرا سوال کہ یا رسول اللہ کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ سال میں 1 مہینے کے روزے رکھوائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں۔ چوتھا سوال کیا اس کے بعد ایمان لایا، کیا یا رسول اللہ نے حکم دیا کہ آپ ہمارے مالداروں سے صدقہ وصول کریں اور ہمارے غریبوں فقیروں میں اس کو تقسیم فرمائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ 4 سوالوں کے جواب جب وہ سن چکا تو کہا کہ فقال رجل آمنت بما جئت به، یا رسول اللہ جو باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر بعد میں کیا کہا اس نے؟ وانا رسول من ورائی من قومی، میں اپنی قوم کی طرف سے رسول تھا، میں اپنی قوم کی طرف سے رسول تھا۔ تو یہاں رسول بمانے بھیجے ہوئے کے ہوتے ہیں، یعنی لینگویج کے لغت کے اعتبار سے۔ اچھا، اور جو ہمارے رسول کو ہم نبی رسول مانتے ہیں وہ اصطلاحاً ہے کہ یعنی وہ اللہ نے ان کو رسول اور نبی بنایا ہے۔ جی بے شک۔ تو یہ بخاری شریف میں لفظ ہے اسی طرح کا، وانا رسول من ورائی من قومی، یا رسول اللہ میں اپنی قوم کی طرف سے رسول تھا، یعنی بھیجا ہوا تھا۔ رسول بمانے بھیجے ہوئے کے ہوتے ہیں، اچھا، یعنی میں اپنی قوم کا فرستادہ تھا، بھیجا ہوا تھا۔ یہاں رسول بمانے بھیجے ہوئے کے ہے۔ وہ کہا میرا نام زمام ابن ثعلبہ ہے۔ تو میں یہ جواب دیتا ہوں اہل حدیث کو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں مرزا انجینئر جیسے خبیثوں کو، کہ اگر تم یہ مانتے بھی ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہلوایا تو حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بے شک نیت پر ہے، تو وہاں معنی یہ لیا جائے گا کہ چشتی رسول اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ چشتی کو اللہ نے ہندوستان میں بھیجا ہے۔ جی جی، رسول کے معنی بھیجنے کے، چشتی کو اللہ نے بھیجا ہے ہندوستان میں، ہاں یہ نیت مانی جائے گی۔ پھر کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح، بالکل بجا ہے۔ اگر اس کو بھی اہل حدیث نہیں مانتا، کہنا نہیں ماننا چل مردود، اب تو جو اور سمجھا دیتے ہیں۔ جیسے وہ اندور میں کڑاؤ گھاٹ میں اہل حدیث کی مسجد ہے نا، میں نماز پڑھا ہوں میری میں تقریر ہو چکی ہے۔ اچھا، تو میں کہوں گا کڑاؤ گھاٹ کے مردود اہل حدیث سنو، اب بھی تم نہیں مان رہے تو سنو، ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ کہے گا کیسے، میں پڑھ دوں گا اس کے سامنے کوئی حدیث ضعیف، تو وہ اہل حدیث کہے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں کہوں گا ٹھیک ہے، سب سن رہے ہیں آپ لوگ، کیا بتایا انہوں نے؟
सब गवाह है ना। कहाँ साहब इन्होंने बताया कि हदीस ज़ईफ है, सब गवाह है ना। तुमने कहा ना हाँ हदीस ज़ईफ है। अच्छा बताओ, मैं ऐसी बात पूछता हूँ, ये बताओ अहले हदीस के मुल्ला मौलवी के हदीस किसे कहते हैं? वो कहेगा अल्लाह के रसूल के फरमान को हदीस कहते हैं। अच्छा मैं कहूँगा ये बताए अहले हदीस के जो अल्लाह के रसूल के फरमान को कमजोर बताए क्या हुक्म है? तो वो कहेगा काफिर है। तो मैं कहूँगा तू क्या हुआ, तूने अभी कहा कि हदीस ज़ईफ है। अच्छा, हम तो हर चीज को हर हदीस को ज़ईफ ही बोलते हैं। नहीं मैं कहूँगा तूने अभी हदीस को ज़ईफ बताया, तू काफिर हुआ कि नहीं? तो वो कहेगा नहीं नहीं हमने नीयत से नहीं बताया, हमने रिवायत के एतबार से बताया। तो तूने सबके सामने कब कहा था कि रिवायत के एतबार से ज़ईफ है? तूने तो डायरेक्ट कहा कि ज़ईफ है। जी जी जी, ऐसा कहते थे ना हम लोग, देवबंदी भी कहते हैं, बरेलवी भी हदीस ज़ईफ है ऐसा कहते हैं दोनों, लेकिन सबकी नीयत यही होती है कि ये रिवायत के एतबार से ज़ईफ है। जी जी। तो जब तू यहाँ कह रहा है कि हमने रिवायत के एतबार से कहा, वो तो तेरे दिल में है ना, हमें क्या मालूम। तो तू गरीब नवाज पे कैसे छीटा कसी कर रहा है कि उन्होंने अपने आप को रसूल कहलवाया है? नीयत को नहीं मान रहा कि रसूल माने भेजे हुए के, जैसे तू हदीस को मान रहा है कि हमने रिवायत के एतबार से ज़ईफ कहा है, ऐसे ज़ईफ नहीं कहा हमने। बहुत सारी किताबें रखता हूँ तो अपने पास, और फलाना सफा नंबर फलाने है ये। हाँ। तो वो तो क्या है, काम तो अच्छा कर रहा था लेकिन बहक गया, बहुत अनशन बकता है वो कभी कभी। हाँ, दोनों उनके बरेलियों पे भी देवबंदियों पे भी। नहीं, हज़रत बारी गुस्तानी रहमतुल्लाह में भी गुस्ताखी करता है। और हुक्म ये है कि जमात के साथ रहना चाहिए, जमात जो मुसलमानों की है उससे अलग नहीं होना। अच्छा हजरत, उसका पता भी तो नहीं चलता वह है क्या शय क्यों कभी बोलता है कि मैं 30 जन कितने साल तक मैं बरेलवी रहा, और फिर जब बरेलवी रहा तो वो मुशरिकीन, उसका बाप का निकाह नहीं हुआ, फिर उसके ही फतवे थे, उसके बाप का निकाह नहीं हुआ, उसकी अम्मा का निकाह नहीं हुआ, तो वो बेनिकाही औलाद हुआ। वो खुद कहता है 30 साल में बरेलवी रहा, तो तू उसी दौरान तो पैदा हुआ है। और इसी तरह जलालुद्दीन चिश्ती है जो हजरत पीर सकलैन मियां रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बुराइयां करता है, वो भी कहता है मैं देवबंदियों में पढ़ा, तो तू भी उसी जमाने की औलाद है, तू भी बेनकाही पैदा हुआ। क्या ख्याल है? ये जलालुद्दीन चिश्ती जो मुनाज़िर करता है ना, फिर उसका मुजाहिद मिल्लत नेटवर्क है, उसमें आता है चैनल। तो वो हजरत पीर सकलैन मियां रहमतुल्लाह अलैह बहुत नेक आदमी थे बरेली में, उनकी बड़ी बुराइयां करता है, जने क्या क्या अनशन लिख लिख के भेजता है उनके बाद। अल्लाह बताइए। जबकि उनके जनाजे में करीब क्या मालूम 4 या 5 लाख आदमी था। जैसे इंदौर में आज तक आपने ऐसा जनाजा नहीं देखा होगा, इतना बड़ा जनाजा था उनके जनाजे में। जी जी। ये आपने मध्य प्रदेश में नहीं सुना होगा शायद अभी तक, इतना आदमी था बरेली में। उनको नऊज़ बिल्लाह मुसलमान नहीं मानते, और कहता मैं खुद देवबंदियों में पढ़ा हूँ। साले पढ़ रहा हूँ देवबंदियों में और उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूँ पैसा कमाने के लिए। आपके इंदौर में कितने मौलवी बता दूं जिनकी बहन बेटियां रिश्तेदारियां देवबंदियों में है? हाँ हजरत, वो तो ये जो ये ग्रीन पार्क में इमामत करता है, ये संभल मुरादाबाद का रहने वाला ग्रीन पार्क में, वो उसकी बहन भाभी के घर में है। ग्रीन पार्क में कौन? अरे वो एक हैगा, उसका नाम है यूसुफ। अच्छा, यूसुफ हैगा, वो वहीं पर इमाम है मस्जिद में, उसकी बहन वहाँ पर है, वही उसके इलाके में भाभी के घर में है। तो ये तो यहाँ के छुप छुपा के रहते हैं, यहाँ पर दूसरों को कहते हैं, मना करते हैं कि तुम इनको बहन बेटी मत दो। मैं कह रहा हूँ कि 20,000 रुपये मैं दूंगा इस बारे में कि अगर इंदौर की कमेटी बन जाए और 20 आदमियों को मुंतखब करने के साथ जितने भी इंदौर के इमाम है सबके पते लो और इनका वो लो, ID कार्ड लो। तो देना पड़ेगा, अगर कमेटी मांगे साहब हमें ID कार्ड की जरूरत है, आप दो वक्त। वो ऐसा तो कहीं क्यों जरूरत, क्यों साहब क्यों मांग रहा है? अरे भाई सदर मांगेगा तो देगा, इतना कर थोड़ी सकता है इमाम कि नहीं जरूरत है। अब 150 इमाम जितने भी इंदौर में है, 200 सबकी ID ले लो आप, और कम से कम 3 लाख रुपए इकट्ठा करके उसमें 20,000 मैं भी दे सकता हूँ। 10 या 20 आदमियों को सबके पते से भेजो, जो बिहार का हो, मुरादाबाद का, रामपुर का या सीवान का, कहीं का भी हो, कहना साहब ये आपके खर्चे के पैसे हैं, 1 महीने के बाद लौटना, उनकी एक एक की बहन बेटी की सबकी आप खबर इसकी बहन कहा, उनका भी एड्रेस लो, उनसे मिल के आओ, फिर उनसे पूरी मुलाकात करो, फिर उनका बयान लो, रिकॉर्ड करके आओ, फिर इंदौर में आपके सुनाओ। तो कम से कम 150 इमामों से 50 इमाम ऐसे मिलेंगे जिनकी बहन बेटियों के अच्छी तरह रिश्ते होंगे, और ये जाके वहाँ मुलाकातें भी करते होंगे, सब करते होंगे। हाँ बराबर, सब आना जाना है, सब कुछ है। अरे ये जो आपके अनवारुल बयान वाले हैं, इनके वालिद के बारे में सुना है कि इन्होंने अपने वालिद को सूरत, ये वहाँ के है ना, आजमगढ़ के? नहीं, ये बस्ती के हैं, भगवतपुर के। अच्छा, बहुत फालतू बोलते हैं साहब। अरे इनके वालिद के बारे में सुना है कि वो देवबंद वालों में है, सूरत में रख दिया है छुपा के इंदौर से। अच्छा, ताकि इंदौर, मुझे बताया इंदौर पास में मैं खजराना हूँ, खजराना एक जगह है ना, हाँ वहीं पर इनका मदरसा है, जामिया गौसिया। हाँ है, पास में इनका मदरसा है। तो मुझे एक आलिम ने बताया जो वहाँ पर वो बड़वाई चौकी पे है ना,
जी, बड़वाल चौक पे मैं रहा हूँ। हाँ, किताबों की दुकान है, उसने बताया था कि इन्होंने अपने वालिद को छुपा के रख रखा है सूरत में, कमरा घर मिला के। अरे वो देवबंदी है ना, ताकि अवाम यहाँ पर इंदौर वाली समझ न ले। अच्छा। अरे जानी कितने लोग ऐसे हैं जो छुप छुपा के रहते हैं। जो अदर मियाँ के दामाद थे ना, शोएब रजा साहब जी, उनके नाना मामू देवबंदी थे। मैं तो घर होके आऊँ, बिजनौर के रहने वाले थे, वहाँ मेरी तकरीरें हुई है बिजनौर के। हजरत मैं बिजनौर का ही रहने वाला हूँ। तो वो आपके पास में जो नजीबाबाद है ना, जी, नजीबाबाद के बाद खाई खेड़ी है, हाँ, खाई खेड़ी में मेरी तकरीरें हुई है। अच्छा कई तकरीरें हुई है वहाँ पर। जनाब हमारे मिलने वाले प्रधान है, साबिक प्रधान जनाब आफ्ताब साहब जी, अंसारी बिरादरी में, वो हमारे उनमें उनकी ठहरता हूँ जाके, वहाँ कई तकरीरें हुई है मेरी वहाँ पर। अच्छा, और वहाँ पर जो उसी के बाद में एक दूधली गाँव है, एक दूधला गाँव है। हाँ, दूधली में इनके दामाद थे अदरी में आके, शोएब रजा साहब। अच्छा, तो टोटल इलाका 98% देवबंद वालों से भरा पड़ा है। उनके रिश्तेदार भी वही थे, लेकिन वो बाद में कट्टर बहुत बन गए थे बरेलवी, इसलिए कि पैसा कमाना था। अच्छा, बाद वक्त मजबूरी में ये लोग इतने कट्टर बन जाते हैं कि इनके घर के हाल देखो तो देवबंदियों में रिश्ते होंगे हाँ, और इधर उधर जाके कट्टर सुन्नी बन जाते हैं। जी जी जी, दिखाने के लिए। ये आपके आजाद नगर में जो इमाम है, उसका नाम हाँ, उमर है, मौलवी उमर। ये वहीं का रामनगर साइड का, मुरादाबाद का इधर का है, ठाकुरद्वारे का। अच्छा, बहुत मालूम आते हैं आपको। अरे तो मेरी तकरीर हुई ना इंदौर में, चंदन नगर में मेरी तकरीर हुई है, हलीमा मस्जिद में मेरी तकरीर हुई है, कड़ाऊ घाट पे मेरी तकरीर हुई है। अच्छा, इंदौर में कई तकरीर हुई है मेरी। उधर देपालपुर में मेरी तकरीर हुई है। अच्छा, देपालपुर है ना उस तहसील, जी, तहसील है, हाँ, हाँ, वहाँ मेरी तकरीर हुई है। इधर कड़ाऊ घाट पे हुई है, और इधर चंदन नगर में हुई है, हलीमा मस्जिद में हुई है। कई तकरीर हुई है मेरी वहाँ पे इंदौर में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। देखिए अब आप आने कभी यहाँ इंदौर आए तो फिर मुझे बताना, अब राब्ता आप कौन करना। से महल्ले में हो? मैं यहाँ खजराना है, रोशन नगर ए। अरे खजाना तो बहुत बड़ा हो गया। बहुत बड़ा हो गया हजरत, बहुत। जब हम आए थे यहाँ कुछ भी नहीं था, अब तो इतना बेहतरीन हो गया कि क्या कहना। अब तो खजाने में शायद 20 मस्जिद हो गई होंगी, पहले 3-4 थी। एक यहाँ अपने अली मस्जिद है यहाँ। अरे ये अनवारुल बयान को भी मैंने बुलाया है कोटा में तकरीर करने के लिए। अच्छा, अनवार को, मौलाना अनवार को। हाँ, लेकिन ये क्या है, फेंकता फांकता होते कि मुझे अरे यह बहुत जज्बाती बड़ा नहीं, मुझे उन बुजुर्ग की जियारत हो गई, मुझे उन बुजुर्ग की, मुझे उन्होंने ऐसा कह दिया, गौसे पाक ने। एक बार मुझसे खुद कह रहा कि एक बार मैं जामनगर गया तो पूरा खानदान मुझसे मुरीद हो गया, और अजहरी मियाँ भी वहाँ आए हुए थे। मुझसे खुद कहा, मैंने सुना नहीं, खुद कहा डायरेक्ट। तो कहा कि पूरा खानदान मुरीद हो गया। मैं क्यों मुरीद हो रहा हूँ, अजहरी मियाँ से क्यों नहीं हो जाते ऐसा? अपनी तरह से बना बना के कहना नहीं था, हमें गौसे आजम ने बशारत दी है कि अनवार काजी के मुरीद होना। ओह, बताइए बताइए, अल्लाह तो डायरेक्ट। अजय हजरत ये गौसे पाक उनको अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इतना बढ़ावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा बढ़ावा दे रखा। अच्छा, दूसरे से मुफ्ती बदरुद्दीन साहब बहुत पाबंद शरअ आदमी थे, और बड़े तकी परहेजगार आदमी थे। उनके बेटों को मैंने कई जगह बुलाया है, सफीपुर में भी, ललितपुर में भी, कोटा में भी। अच्छा, यानी कोटा के इधर भी कई जगह हमने बुलाया, मुरादाबाद साइड भी आए। उनके बेटे मुफ्ती जमालुद्दीन जलालुद्दीन दोनों को बुलाया। अच्छा, तो वो कह रहे हमें अपने बाप ने हमें खिलाफत नहीं दी, तो ऐसे कहाँ से दे देंगे? जबकि बेटे भी आलिम है, चलो गैर आलिम हो तो मान लिया, नहीं दे। वो बेटे भी आलिम हो, तकरीर ये खुद अनवार खुद बुला चुका है उनको, दोनों उनके बेटे को। तो जब उन्होंने अपने बेटे को खिलाफत नहीं दी, जबकि बाप आमतौर से बेटे को तो देता ही है, बेटा भी आलिम भी है, बामल भी है, उनको नहीं दी तो ऐसे कैसे दे देंगे? ये झूठ लिखवाता था खलीफा बच्चे मिल्लत। बाद में फिर अजहरी मियां से खिलाफत ले ली, कहीं किसी और से खिलाफत ले ली। इनका इसी तरह वो ताजदार अहले सुन्नत थे इंदौर में, ताजदार अहले सुन्नत सूफी बासवा हजरत मौलाना फारूक साहब महिदपुरी जी। मैं उनके पास ज्यादा आता जाता था। वो बता रहे थे कि ये 60 रुपए देके एक जमाने में हजरत डोरा जी के वो थे पीर साहब, डोरा जी वालों का नाम याद नहीं आ रहा, शाह अब्दुल हक साहब, उनसे 60 रुपए देके खिलाफत लेने गया था कि हमें खिलाफत दे दो, 60 रुपए दे। ये अनवार, हाँ, जब सस्ता जमाना था ना, 35 साल पहले, 40 साल पहले। जी जी। अरे हजरत वहाँ पे मैं जब बड़वाली चौकी रहता था ना, गफूर खां की बजरिया, वहाँ पे इमामत करते थे। हाँ, अरे वहाँ से फिर वो पहले गौसिया मस्जिद में इमामत करते थे चंदन नगर में। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन फिर जब इन्होंने ऐसा खींचा तान और झूठी छूटी बातें, फिर मैंने छोड़ दिया। तो मैंने छोड़ा, वजह यह रही कि कोटा में एक फर्जी मज़ार पे आते थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से बना हुआ था। कोटा में लोगों में बना हुआ आज भी। तो मैंने उस पर से, जब से हमारा बिगाड़ हो गया कि आप आलिम हो के वहाँ क्यों आ रहा है, तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान बयान करने आता हूँ, मुझे उस जगह से क्या मतलब।
अच्छा ठीक है, तुम्हें उस जगह से मतलब नहीं, लेकिन लोग तो तुम्हें दलील बना रहे हैं ना कि एक आलिम आ रहा मना नहीं कर रहा, तो लोग तो आने जाना शुरू करेंगे ना, फातिहा पढ़ेंगे कोई और क्या, खुला खुला शिर्क होगा। तो फिर तो कोई हजरत अबू बकर का मजाक बना दे, कहीं भी हजरत उमर का बना दे, कह दो कि हम तो हजरत अबू बकर की शान बयान करने जाते हैं, हमें उस जगह से क्या मतलब। फिर तो जगह जगह मजार बनते चले जाएंगे, तुम यही कहते ना हमें उस जगह से क्या मतलब। हजरत इनका एक भांजा रहता है मेरे पास में ही, हाँ, तो वो ये कह रहा था कि भैया ये जब वहाँ गुजरात जाते हैं ज्यादा, हमारे गोंडल जाते हैं, गोंडल में लोग सूदखोर लोग हैं, मुझे मालूम हुआ शियन मेले में, गुजरात में, गोंडल वहाँ गुजरात में ही है। हाँ, गोंडल मेरे तराई पढ़ा चुका हूँ दोरा जी, तो वहाँ ये जाते हैं और बोला लाखों रुपया कमा के लाते हैं उसमें, करोड़ों का मामला। हाँ, इनका भांजा है, वो खुद बता रहा था। शियन मेले में सूदखोर लोग हैं, वहीं जाके ठहरते हैं गोंडल में। अल्लाह ताला, गोंडल भी मैं गया हूँ, मैंने तरावी पढ़ाई है दोरा जी में, चिश्तिया मस्जिद में 10 दिन में मैंने तराई पढ़ाई, आज से 8-10 साल के करीब। जी जी जी। तो ये वहाँ से खूब कमाया इन्होंने अच्छा पैसा, और आज भी कमा रहे हैं। और हजरत बहुत बड़ा मदरसा बना अच्छा, दिया। इन्हें हराम हलाल प्रॉपर्टी कर ली, इन्हें हराम हलाल से कोई मतलब नहीं है, तमाम प्रॉपर्टी कर ली इंदौर में, यहाँ खजराने में भी। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में मालदार यही है आज की तारीख में, है इससे बड़ा कोई मालदार ही नहीं है मौलवियों में मध्य प्रदेश में। अनवार से? हाँ, अच्छा जी। नूरी बाबा भी इससे पीछे समझ लो। वहाँ नूरी बाबा तो चले गए बेचारे। अभी मौजूदा तारीख में कोई नहीं है इसके मुकाबले। अच्छा, न जबलपुर में, न रतलाम में, न इंदौर में, न उज्जैन में, न कोटा में, कहीं भी नहीं है कोई भी। क्योंकि अच्छा, जिसके प्लाट की तादादी नहीं मालूम, कितने प्लाट हो, कितनी प्लाट कितने जने, वही तो बताना मैं, जने कितने प्लाट, जने कितनी प्रॉपर्टी, वो जो समझ लो आपके, ये जब से वहाँ आया ना, हाँ, कोटा में फर्जी मज़ार पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, जब से मेरी बातचीत बंद हो गई, जब से फिर बिगाड़ होते ही चला गया। अच्छा, ये एक बार नहीं गया, लगातार 7 साल गया है। चलो एक बार आदमी मान ले गलती हो गई, भूल से गया, 7 साल गया लगातार जानते हुए। फिर तो नहीं माना जाएगा ना, जब तुम 7 साल लगातार जा रहे हो जानते हुए, फिर काय का बहाना चलेगा। सही बात। अब मैं आपको आखिरी बात बताऊं, मुफ्ती आदम राजस्थान हजरत मौलाना मुफ्ती अशफाक हुसैन नईमी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बामल आलिम थे, मुफ्ती आजम के खलीफा भी थे, और उनके भी खलीफा थे अली हुसैन अशरफ मियां के शायद गालिबन, उनके भी होंगे गालिबन, या और भी हर 3 जगह से खिलाफत थी उनको, और सदरुल फाजिल के शागिर्द थे। मैंने पूछा था तो हजरत ने कहा कि बाज़ाब्ता शागिर्द नहीं थे, लेकिन कुछ सबक पढ़े थे उनसे। हजरत ने मुझे बताया था संबल में गालिबन, हजरत ने मेरे लिए दुआ भी की थी संबल में, मैंने उनको हदीस सुनाया था। तो हजरत को जब कोटा में लाने जानवर जाता था, एक आदमी दोस्ती के नाते ले आया था कि यार तुम ले आओ, तुम्हारी हजरत बात मानते हैं, तो तुम आ जाएंगे तो मतलब मेरी जगह का प्रचार हो जाएगा एक फर्जी मज़ार का। जी जी जी। तो वो मुन्ना गौरी, नाम बता रहा हूँ, मुन्ना गौरी साहब लेके गए, वही मैं उनके यहाँ भी गया हूँ, वही मुझे बता रहे थे। अच्छा, उनसे खास ताल्लुक के मुन्ना गौरी एक बार लेगा कि हजरत चलिए वो जगह जहाँ इमाम हुसैन का वो बना हुआ है। जब तक से बड़ा मज़ार भी नहीं था, ऐसी यादगार बनाई थी छोटी मोटी, अब तो बहुत बड़ा गुम्बद सब कुछ बना दिया उसने कोटा में। हाँ, तो जब वो मुफ्ती आजम राजस्थान को लेके गए कि हजरत ये वो जगह है जहाँ इमाम हुसैन की, तो हजरत इतने नाराज हुए कि बात भी नहीं की, पानी भी नहीं पिया, और पीछे ऐसे पलटे कि फिर बाद में बात ही नहीं सुनी कुछ। बताइए, यानी ये बामल आलिम की पहचान है कि ये क्या फर्जी हर कहीं हर कुछ बना दो, फिर तुम जगह का चर्चा करो तो लोग बात तो फिर शेयर करेंगे ना साहब। सही बात हजरत से, बिल्कुल सही बात, बढ़िया बात है आपकी। पानी भी नहीं पिया, बात भी नहीं की, वो बता रहे थे कि पीछे ही के पीछे हजरत होली, खाली जगह देख के पीछे होली एकदम कि ये जगह जायज नहीं है, सही नहीं है। नहीं समझ गया कि ऐसे यादगार बनाना जायज नहीं, ऐसे तो फिर हर कोई इंदौर में, उज्जैन में, रतलाम में, पूरी दुनिया में बना ले, हम भी इमाम हुसैन के चाहने वाले हो, हम भी इमाम हुसैन के चाहने वाले। तो फिर ये अनवार तो लगातार 7 साल गया करीब साहब, 1 साल में तो चलो मान ले गलती हो गई, भूले से आ गया, 7 साल गया है वो, 7 साल कंटिन्यू गया, सब बता देंगे वहाँ के लोग। बताइए अब जाके इसने बंद किया, अरे भाई 7 साल के बाद बंद किया तो क्या किया तूने, 7 साल तो गुमराह किया ना मुसलमानों को। हाँ, सही बात। वो देख मुफ्ती अशफाक साहब तो एक ही बार में वापस हो गए थे। तो अरे भैया, अरे हजरत मैंने बयान सुना इनका, गफूर खान की बजरिया, इतना इसने तो ये कहा है कि मुफ्ती आजम हिंद कब्र में आ गए थे एक बार किसी मुरीद की मदद के लिए। बताओ ऐसे कब्रों में क्या पीर लोग आते हैं साहब, कहाँ की बातें लाते हैं ये लोग। कभी नहीं सुना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु किसी की कब्र में मदद करने पहुंचे हो, या हजरत उमर पहुंचे हो, या हजरत उस्मान पहुंचे हो। ये लोग, इसने एक बार कहीं सुना रहा था, मैंने सुनी, तभी कह रहा है कि मुफ्ती आजम हिंद आ गए थे कब्र में मदद करने के लिए। बताइए क्या यार, तू कैसे मन गढ़ंत सुना रहा है? मन गढ़ंत फर्जी कहानी है।
अरे ये सिर्फ इसलिए अच्छा, सुनाते हैं रावी कि नहीं लोग हूँ खुश कहा, हो जाए। रावी नहीं हूँ कहा, यूँ कहते रहते हैं। अब ये कौन से रावी ने कहा, यूँ रावी नहीं हूँ कहा, रावी नहीं हूँ और कहा। कभी इसने जश्न खालिद बिन वलीद पूरे इंदौर में नहीं कराया, न जश्न नहीं, उमर कभी नहीं फारूक मना, कराया, न ना जश्न ना उस्मान गनी कराया, न जश्न हजरत अली कराया सही ढंग से। ना यानी ना इनकी शायान शान नहीं कराया गया, जिसमें 5,000 आदमी पूरे इंदौर में आज तक जमा हुए हैं खुलफाए राशिदीन के नाम पे भी। नहीं हुआ हजरत, न कभी जश्न इमाम ज़ैनुलाब्दीन इंदौर में हुआ, न जश्न इमाम बाकर हुआ, न जश्न इमाम जाफर हुआ, न जश्न इमाम मूसा काजिम हुआ, न जश्न इमाम अली रज़ा हुआ, न जश्न इमाम तकी हुआ, न जश्न इमाम नकी हुआ, न जश्न जी, इमाम हसन अस्करी हुआ, आज तक नहीं हुआ। नहीं तो कहीं क्या नहीं मतलब है, क्या इन्हें शिया मानेंगे? अरे भाई ये तो हमारे भी इमाम है, शिया और ढंग से मानते हैं, हम अहले सुन्नत के हिसाब से मानते हैं इनको अपना इमाम। जी। हाँ, वो उनका तर्ज अमल अलग है, अच्छा, हमारा अलग जश्न आला हज़रत तो आपने सुना होगा इंदौर में कितने हो गए हैं? है। बहुत सुना है होते ना? हैं जी। वो तो हर मस्जिद में हो जाता है जश्न आला हज़रत, तो हर मदरसे जश्न में, आला हर हजरत तो आज हमारी अली मस्जिद में ही होता वो है। पूरी दुनिया में होता है, लेकिन जश्न खालिद बिन वलीद कभी हुआ इंदौर में? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी न जश्न अब्बास कलमदार हुआ? जश्न अबू बकर सिद्दीक हुआ रज़ियल्लाहु अन्हु। नहीं हुआ ना। ना बस जश्न अबू बकर सिद्दीक उदयपुर के लोग मनाते हैं, और बाकी जो कभी कभी, वो भी कभी कभी कहीं मस्जिद वो में। भी 100-200 लोग जमा हो जाए, 500। उदयपुर में जरा अच्छी तरीके से मनाते हैं बस। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। जश्न खालिद बिन वलीद आज तक नहीं हुआ। ना कहीं नहीं न हुआ। जश्न जबकि अब्बास अलमदार के अब्बासी लोग भी खुश हो जाते सब के सब। जी न जी जश्न जी। हजरत अबू हुरैरा हुआ, न जश्न ना हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से हुआ कि तमाम अंसारी लोग खुश हो जाते। लेकिन ना आलाप के नाम से देख लो, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, इंग्लैंड में हर जगह होते हैं और हर साल होते हैं, हर जगह और हर जगह, और हर साल हर जगह होते हैं और हर साल होते हैं साहब। जी 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 यानी जी। हिंदुस्तान में हजारों लाखों जगह होते हैं वो, करीब करीब। हाँ। कितना इन्होंने बढ़ा चढ़ा रखा कि साहबा किराम के नाम से तो जलसे नहीं करते, नहले बेद के नाम से, और इनके नाम से हर जगह पूरी दुनिया में हाँ ये हो रहा है कि नहीं साहब? आप भी आया देख रहे हो है। जी और जी। इनको रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने को मना करते हैं। एक तरफ मसले हाँ बताते हैं कि अंबिया फरिश्तों के अलावा नहीं कहना चाहिए, तो तुम तो ठीक है, ये मसला तो तुमने बता दिया, तो फिर गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों कह रहा हो? वो भी मत कहो। गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हजरत हाँ, साहब। नहीं हम कह रहे हैं चलो ठीक है, बरेली अंबिया वाले फरिश्तों जितने के भी हैं अलावा उनको। नहीं कहना चाहिए, तो तुम गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों कह रहे हो? जब तुम कह रहे हो हाँ ये जायज है, तो बस तो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहना भी जायज है। हाँ, ये सही बात कहते है। हैं फला फला किताब में गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा है, तो हम तुम्हें बुखारी शरीफ में बताते हैं कि बुखारी शरीफ में कितनी जगह इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा है, गौसे पाक ने लिखा है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, एक वली ने थोड़ी, सैकड़ों वलियों ने लिखा है इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम। तो वो जी दलील जी इनको क्यों नजर नहीं आती? वहाँ आंखें क्यों फूट जाती हैं जमदा शाही वाले की, मुफ्ती शहजाद की? जी जी जी। वहाँ तो इनकी आंखें फूट जाती हैं, वहाँ दलीलें नजर नहीं आती। हाँ, इनको रज़ियल्लाहु अन्हु कहने वाली दलीलें नजर आती हैं, फला किताब में इतनी जगह लिखा, फला किताब इतनी जगह। वो क्या है, सही आम बात है तरीके से बिल्कुल। वलियों ने नहीं लिखा गैर साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु, कहीं कहीं भूले से शफ़क़त कलम में जल्दीबाजी में लिख दिया, खराब तो हो गया। उन्होंने उसको मिटाया नहीं, कि जैसे 1000 में से कहीं 5 जगह लिखने में आ गया, 995 जगह उन्होंने रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। हाँ। आप बड़े बड़े वलियों की किताब में पढ़ो, सब जगह वो लोग गैर साहबा को रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। हाँ, कहीं कहीं रहमतुल्लाह अलैह लिखने में लिखते आ हैं ना। जाता है जल्दबाजी में रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उसको ये दलील बनाते हैं। हाँ। लेकिन वो आम तरीके से नहीं लिखते। जितने वली हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम रब्बानी, मुजल्लिद सानी, सबकी किताबें पढ़ो वलियों की, तो उसमें जी, रहमतुल्लाह अलैह लिखते वो लोग। रहमतुल्लाह अलैह लिखा सबको। हाँ, लेकिन मौलवियों ने चला दिया, ये 14वीं सदी के मौलवियों ने सिस्टम चला दिया है। एक तो हुजूर कहने का सिस्टम चला, हुजूर बोलने का, और एक गैर हाँ साहबा को रज़ियल्लाहु कहने का। जी। अच्छा हजरत, हाँ हाँ, ठीक है, नमाज आजान हो गई, जरा नमाज पढ़ी हमें। बोलो, मैं डलवा दूंगा चैनल पे, ठीक है। हाँ हजरत, ये चैनल पर डलवा देना। और क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम। ठीक है, ठीक ठीक, ठीक है, शुक्रिया हजरत।